آج سے 500 سال پہلے کی زندگی کا تصور کیجیے. سوچیں کہ آپ میڈیول ٹائمز میں یورپ کے کسی حصے میں ہیں. اگر آپ سے اس وقت اور اب کے درمیان سب سے بڑی تبدیلی کا پوچھا جائے تو آپ کس چیز کا ذکر کریں گے؟ شاید آپ انٹرنیٹ یا دور جدید کی انڈسٹریلائزیشن یا پھر ناقابل یقین حد تک ہیلتھ کیئر کے میدان میں آنے والی تبدیلی کا نام لیں. شاید آپ مارکس یا ڈارخیم کی طرح فیوڈل سسٹم سے کیپٹل سسٹم کی طرف آنے والی تبدیلی کو سب سے بڑی تبدیلی سمجھیں. یہ سب جواب کچھ نہ کچھ حد تک ٹھیک ہیں، لیکن میکس ویبر کا ویو پوائنٹ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑی تبدیلی تکنیکی، اقتصادی یا سیاسی نہیں تھی، بلکہ ان کے نزدیک روایتی اور جدید معاشرے کے درمیان جو سب سے بڑا فرق تھا وہ لوگوں کے انداز فکر میں آنے والی تبدیلی تھی. بہت سارے ان تھیورسٹ کے برعکس جنہیں ابھی تک ہم نے اسٹڈی کیا، میکس ویبر 19ویں صدی کے آخر تک زندہ رہے، اور اس وقت کے اتار چڑھاؤ اور تبدیلیوں نے باقی سب کی طرح انہیں بھی مستر کیا. وہ پہلی جرمن نیشنل سٹیٹ کے قیام تک زندہ رہے، اور ان مراحل کا مشاہدہ انہیں جدید سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا رہا. اور ویبر نے اپنے مطالعہ میں جدید دنیا کی ان خصوصیات کو ڈیفائن کیا ہے جن پر موجودہ دور کے سوشیولوجسٹ کئی دہائیوں سے ریسرچ اور بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. ان کا فوکس جن آئیڈیاز پہ تھا وہ ہیں ریشنلائزیشن، بیوروکریسی اینڈ سوشل سٹریٹیفیکیشن. اور جب انہوں نے دیکھا کہ جدیدیت سوسائٹی کو کس سمت میں لے کے جا رہی ہے تو انہیں کچھ چیزوں نے شدید پریشان کیا. لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر کس چیز نے انہیں پریشان کیا، پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم جدید دور میں پہنچے کیسے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ویبر کے مطابق ٹریڈیشنل سے ماڈرن سوسائٹی میں ڈھلنے کی سب سے بڑی وجہ تھی سوچ میں آنے والی تبدیلی، نہ ہی موڈز آف پروڈکشن اور نہ ہی سوشل انٹیگریشن، بلکہ صرف اور صرف آئیڈیاز میں آنے والی چینجز. روایتی انداز میں سوچنے کا مطلب ہے کہ دنیا کو صرف ایک ہی ویل کنیکٹڈ سسٹم کے طور پر دیکھا جائے اور اسے آئیڈیل ہونا چاہیے، جس کا مشاہدہ ہم جاگیردارانہ نظام اور بادشاہت کے زمانوں میں کر سکتے ہیں. کیسے روایتی معاشرے میں بادشاہت کو خدا کی طرف سے عطا کردہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ ہر قیمت پر ان کے وفادار رہنا چاہتے تھے، اور اس بات پر سوال اٹھائے بغیر کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا برے، اہل ہیں یا نا اہل. لوگ خود کو ان بادشاہوں اور جاگیرداروں کے عطا کردہ فرائض میں مشغول رکھتے تھے. روایتی معاشروں میں اندھی تقلید کا نظام تھا. یوں سمجھیں کہ ٹریڈیشنلزم میں لوگ چیزوں پر زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جدیدیت کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. جدید انداز فکر میں اندھی تقلید کی بجائے ہر چیز میں سوال اٹھانے کا رواج سر اٹھانے لگا. تاریخ کے مطالعے کے دوران ویبر نے دیکھا کہ سوسائٹی اور انڈیویجول زیادہ حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ریشنلائزیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں. یہ ریشنلائزیشن کیا ہے؟ ویبر کے مطابق ریشنلائزیشن تھنکنگ کے پروسیس میں 3 خاص سٹیجز سے گزرنے کا نام ہے: کیلکولیبلٹی، میتھڈولوجیکل بیہیویئر اینڈ ریفلیکسیوٹی. کیلکولیبلٹی یا حساب کتاب سے مراد اگر ہمیں ان پٹ کا پتہ ہو تو ہم آؤٹ پٹ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. گھر میں خود بنائے باؤل کے بارے میں سوچیں. فیکٹری میں بننے والے سینکڑوں باؤل ایک جیسے ہی ہوں گے، لیکن آپ کے گھر میں بنے ہوئے 2 باؤل بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. اور وہ وجہ کہ جسے آؤٹ پٹ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ ریشنلائزیشن کا دوسرا سٹیپ ہے، جسے ہم میتھڈولوجیکل بیہیویئر کہتے ہیں. جیسے ایک میتھڈ جو ایک بار کسی مشین میں ایڈ کر دیا جائے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشین کا لیور کون پل کر رہا ہے، رزلٹ سیم ہی ہوں گے. لیکن ریشنلائزیشن اب بھی ادھوری ہے اگر اس میں ریفلیکسیوٹی نہ ہو. اور ریفلیکسیوٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم مسلسل نئے طریقے اور میٹیریلز کی کھوج میں لگے رہیں تاکہ مزید بہتر باؤل بنایا جا سکے. لیکن آخر یہ ریشنلائزیشن شروع کیسے ہوئی؟ ویبر نے اس کا ایک حیران کن جواب دیا، اور وہ وجہ جس کو انہوں نے ریشنلائزیشن کی بیس بنایا وہ تھی مذہب. ویبر نے اپنی کتاب The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism میں لکھا کہ ٹریڈیشنلزم سے ماڈرنٹی کی طرف شفٹ کی ابتدا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن سے ہوئی. ہزاروں سالوں تک یورپ میں کیتھولک کرسچنز نے ڈومینیٹ کیا، لیکن 1517 میں پہلی بار جرمنی کے ایک پریسٹ مارٹن لوتھر نے کیتھولک کے کچھ پریسٹ کی جانب سے کی جانے والی کرپشن سے پردہ اٹھا دیا. اس سے نئی مذہبی تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے روایتی کیتھولک رسم و رواج کی مخالفت کی. ان تمام واقعات کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے، اور ویبر کے مطابق یہی تحریکیں وجہ بنی دنیا کی روایت پسندی سے جدیدیت کی طرف جانے کی. کیتھولزم بیسیکلی ٹریڈیشنل دنیا کا ایک آئینہ ہے. میڈیول ٹائم میں سماجی نظام ہو یا سوشل آرڈر، سب کچھ خدا اور مذہب کی عطا سمجھا جاتا تھا. اس کے برعکس
लूथरनिज्म का नजरिया यह था कि यकीनन बहुत सी चीजें खुदा की जानिब से हैं, लेकिन फिर भी इंसान के हाथ में भी वो अख्तियार मौजूद हैं जिनसे वो अपने लिए अच्छा बुरा रास्ता चुन सकता है। और इस आइडिया ने वेबर के हिस्ट्री के नजरिए में एक और अहम शख्सियत को ऐड कर दिया, जो थे जॉन कैल्विन। कैल्विन इस बात पे यकीन नहीं रखते थे कि खुदा को नाचीज इंसान के आमाल पर कोई तवज्जो भी है। कैल्विन पहले से तयशुदा किस्मत पर यकीन रखते थे, जो खुदा ने कायनात की तख्लीक के साथ ही बना दी है। आप कामयाब होंगे या नाकाम पहले से ही लिखा जा चुका है और आप इसको बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। या तो आप मुंतखब लोगों में से हैं या नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन कैसे पता चले कि आपको खुदा ने चुना है या नहीं? और यहाँ कैल्विन के पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वुर वाज़ेह होता है कि क्या कामयाबी आपके हिस्से में आई है या नहीं, इसका अंदाजा इस बात से होगा कि किन हालात में आपने अपनी जिंदगी गुजारी। अगर आपने बेहतर और ज्यादा काम किया, इससे मुराद है कि आपको किस्मत ने अहमियत दी। मसलन अगर आप इक्तसादी तौर पर कामयाब हैं तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने आपको नवाजा है। आप ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरह सिर्फ जरूरियात के पूरा होने तक ही काम नहीं करते, बल्कि इस पर्सपेक्टिव के फॉलोअर्स अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा जमा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि दौलत का होना ही इस बात का सबूत है कि यू आर सेव्ड और किस्मत आप पर मेहरबान है। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के वो सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिन्हें वेबर ने स्टडी किया। वेबर ने इन्हीं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को ही कम्युनल और रिवायती माशरे के इंडिविजुअलिस्टिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ सफर का कैटलिस्ट करार दिया। और अगर आप गौर करें तो जदीद माशरे और रिवायती माशरे में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता अगर इस जदीद माशरे से रैशनल थिंकिंग को निकाल दिया जाए। मसलन आप इस जदीद माशरे में अपना काम मेथड के तहत करते हैं, उसमें हमेशा बेहतरी लाने के लिए रिफ्लेक्सिविटी से फायदा उठाते हैं और नफा और नुकसान को कैलकुलेट करके अपनी कामयाबी का अंदाजा लगाते हैं। हकीकत पसंदी या रैशनल थिंकिंग का इन्हीं मजहबी ख्यालात से आगाज हुआ। दरअसल अगर आप कभी फौज के स्ट्रक्चर का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि वेबर के दलाइल की रूह से रैशनलाइज्ड सोसाइटी का सबसे पहला अंसर राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में जाहिर होता है। ब्यूरोक्रेसी सोसाइटी की ट्रेडिशनल से मॉडर्न ट्रांजिशन का एक अहम हिस्सा है और वेबर ने 6 ट्रेट्स आइडेंटिफाई की जो इसे एक्सट्रीमली रैशनल और एफिशिएंट बनाती हैं। इसमें ओहदे की दर्जा बंदी, वाज़ेह चेन ऑफ कमांड, सबके लिए अलग अलग रोल्स, एक दूसरे के साथ फॉर्मल और रिटन कम्युनिकेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस और रूल्स और रेगुलेशन शामिल हैं। इस बात से कतई नजर कि ये किन खास शख्सियात के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे अल्फाज में कहें तो दे वर्क इम्पर्सनली। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जिन भी स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे वो सब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, जैसा कि फौज, अदालतें, मिनिस्ट्रीज वगैरह। पर ना सिर्फ इस बात में चेंज आया कि स्टेट काम कैसे करती है, बल्कि इस चीज में भी बदलाव आया कि स्टेट को ओबे क्यों किया जाए। वेबर के मुताबिक ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्टेट रिवायात की बिना पर चलती थी, जैसे कि लोग किंग की पैरवी इसलिए करते थे क्योंकि हमेशा से ऐसा ही किया जा रहा था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट अलग तरह से काम करती है। वेबर ने इसको लीगल रैशनल और क्रिज्मेटिक लेजिटिमेसी में देखा। लीगल रैशनल से मुराद अवाम का सिस्टम पर बिलीफ है, आप रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो लॉजिकल हैं। जैसा कि कोई सिपाही कभी अपने अफसर के हुक्म से इनकार नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए और उसका ये रवैया कल भी एक जैसा ही होगा। लेकिन इस लीगल रैशनल लेजिटिमेसी और ब्यूरोक्रेसी में एक जनरल मसला ये है कि इनमें रूल्स को फॉलो करने पर तो इंसान आमादा होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आखिर रूल्स बनाएगा कौन। ये वो नुक्ता है जहां से क्रिज्मेटिक लेजिटिमेसी आ जाती है। आप एक क्रिज्मेटिक लीडर की गैर मामूली खसूसियात की बिना पर उसकी बात को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जब हर 5 साल बाद हम वोट के लिए जाते हैं तो हकीकत में हमने ये इंतखाब करना होता है कि कौन ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शंस देगा। हम लोगों को उनकी खूबियों की बुनियाद पर इंतखाब करते हैं। और वेबर का सोशियोलॉजी की दुनिया में एक और अहम कंट्रीब्यूशन यही आइडिया था कि वो जो लोग ब्यूरोक्रेसी को लीड करते हैं वो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट से करते हैं। वेबर के मुताबिक यही पॉलिटिकल पार्टीज असल में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का या समाजी दर्जा बंदी की बुनियाद हैं और इन्हीं पार्टीज से पता चलता है कि लोग पावर डायनेमिक्स में किस क्लास या दर्जे से बिलोंग करते हैं। वेबर के मुताबिक लोगों के दर्जा बंदी सिर्फ दौलत की बुनियाद पर ही नहीं है या सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ही बेस्ड नहीं होती जो मार्क्स का आइडिया था, बल्कि वेबर के मुताबिक सिस्टम इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और इसके 3
एलिमेंट्स हैं। मार्क्स की तरह वेबर ने भी माशरती दर्जा बंदी में क्लास को शामिल किया है, लेकिन उनका ख्याल है कि किसी इंसान के माशरे में क्लास को डिफाइन करने में पावर और प्रेस्टीज यानी सियासी कुव्वत और इज्जत भी अहम डिटर्मिनेंट्स हैं। ये तीनों चीजें क्लास, पावर और स्टेटस इंसान के माशरे में मकाम पर असरअंदाज होते हैं, और अहम बात यह है कि माशरती दर्जा बंदी के ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे पर इन्हसार किए बगैर बदल सकते हैं। जैसा कि एक मौलवी साहब जिनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है गरीब हो सकता है, एक ऐसा शख्स जो लॉटरी जीता है हाई इकोनॉमिक क्लास से तो ताल्लुक रखता है लेकिन हो सकता है कि उसकी माशरे में इज्जत ना हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ब्यूरोक्रेटिक पावर तो हो लेकिन माशरे में पैसा और स्टेटस ना हो। और फिर आते हैं वो लोग जो अपनी शोहरत और स्टेटस को पॉलिटिकल पावर में बदल देते हैं। मार्क्स की तरह वेबर ने माशरे की दर्जा बंदी पर कोई क्रिटिकल स्टैंड नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे प्रॉब्लम नहीं समझते थे। वेबर के मुताबिक रैशनलाइजेशन ही मॉडर्न सोसाइटी का डिफाइनिंग फीचर है, जिसके बारे में वेबर खासी तशवीश का शिकार थे। याद रहे कि रैशनलाइजेशन में 3 चीजें आ जाती हैं, जैसा कि पहले बताया गया, कैलकुलेबिलिटी, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर और रिफ्लेक्सिविटी। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी का खो जाना सबसे आसान बात है और उसके बाद आप एक कैलकुलेटेड रूटीन में फंस के रह जाते हैं जो कि मीनिंगलेस है। वेबर को ये परेशानी लाग थी कि रैशनलाइजेशन के जरिए जो सिस्टम तख्लीक हुए हैं अब वक्त के साथ साथ उनसे रिफ्लेक्सिविटी खत्म होती जा रही है। वेबर को ये फिक्र थी कि ये भी एक तरह की कैद है और उन्होंने इसे आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिज्म का नाम दिया, जिससे हम आजाद नहीं हो सकते। और ऐसी जिंदगी रैशनलाइजेशन के बुनियाद पर बनाए गए सीरीज ऑफ इंटरेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं, जिसका कोई जाती मकसद या मतलब नहीं। वेबर को इसी मकसद और आइडिया की फिक्र थी कि आखिर हम किस तरह हमारी हकीकत को तश्कील दे रहे हैं। यही वो सबसे बड़ा असर था जो वेबर ने फ्यूचर सोशियोलॉजिस्ट को दिया, जैसा कि अर्विंग गॉफमैन जैसे थ्योरिस्ट ने इसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म में, टॉलकिट पार्सन और जॉर्गन हैबरमैस जैसे थ्योरिस्ट ने इसे मैक्रो लेवल पर ओवरव्यू किया। इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में आपने मैक्स वेबर और मॉडर्न दुनिया के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा। हमने रैशनलाइजेशन और ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात की। हमने वेबर के कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लेजिटिमेसी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी डिस्कस किया। हमने देखा कि वेबर मॉडर्न दुनिया को लेकर आखिर क्यों इतना परेशान थे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।